हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंडस्ट्रियल लॉ में आज हम पढ़ेंगे सम मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या क्या रिकवरी होती है, किस तरीके से रिकवरी होती है ग्रेजुटी की, और एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ ग्रेजुटी जो रूल्स 19 में आता है, और पेनल्टी सेक्शन 9। तो ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं और ऑलमोस्ट सभी टॉपिक ग्रेजुटी एक्ट के कवर हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। तो इस पे लेट्स बिगिन स्टार्ट। फर्स्ट वन प्रोविजन है स्टूडेंट, पावर टू मेक रूल्स। पावर टू मेक rules the appropriate government may by notification make rules for the purpose of carrying the provision of this act। ठीक है, यानी कि जो appropriate government है ये क्या कर सकती है, कोई भी रूल बना सकती है for the carry out the activities and functions of the gratuity act। in exercise of the power, this power the central government has made the payment of gratuity Act 1972 notification dated 16/9/1972 published in part 2nd section 3 subsection 1 of the Gazette of India extraordinary dated 6th of September 1972। So, the appropriate government may by notification make rules for the purpose of carrying the provision of the act। The appropriate government may by notification make rules for the purpose of carrying the provision of this act, the provision of this act सेकंड वन है नोटिस ऑफ opening, change or closure of the establishment। Notice of opening, change or closure of the establishment। So, a notice shall be submitted by the employer to the controlling authority of the area within 13 days of any change in name, address, employer or nature of business. Where an employer intend to close down the business, he shall submit a notice to controlling authority at least 60 days before the intended closure। तो ये प्रोविज़न है नोटिस ऑफ ओपनिंग, चेंज और क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट का अंडर द ग्रेजुटी एक्ट 1972। A notice shall be submitted by employer to controlling authority
of the area within 30 days of any change in name, address, employer और नेचर ऑफ बिजनेस। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होता है तो आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है। Where an employer intend to close down business, he shall submit a notice to the controlling authority at least 16 days before and the intended of closure। अगर एम्प्लॉयर कुछ चेंज कर रहा है, जैसे कि क्लोज कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 60 डे पहले अपने जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको एक नोटिस देना होगा। थर्ड जो प्रोविजन है, थर्ड वन क्या है, डिस्प्ले ऑफ नोटिस। तो ये सारे प्रोविजन हम द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में पढ़ रहे हैं। द एम्प्लॉयर शैल डिस्प्ले अ नोटिस, एम्प्लॉयर, ध्यान दीजिए, द एम्प्लॉयर शैल डिस्प्ले अ नोटिस एट नियर द मेन एंट्रेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इन बोल्ड लेटर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी इन the language understood by the majority of the employees, specifying the name of the officers with designation authorized by the employer to receive on his behalf notice under this act and rules made thereunder। ठीक है, यानी कि कोई भी रूल्स है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट, और बोल्ड लेटर्स में जो भी अंडरस्टैंड लेवल है, लैंग्वेज है, मेजोरिटी जो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो उस लैंग्वेज में आपको वहाँ पे नोटिस लिखना होगा, जो कि क्या है, मेन एंट्रेंस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भी जो भी आपका एस्टेब्लिशमेंट का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड, वहाँ पे बोल्ड लेटर्स में जो भी कॉमन लैंग्वेज है वर्कर्स एम्प्लॉयज़ की, उसमें आपको क्या करना है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नोटिस करनी है। ठीक है, डिस्प्ले करनी है। सो थर्ड जो मिसलेनियस प्रोविजन में थर्ड पॉइंट है वो है डिस्प्ले ऑफ नोटिस है। द एम्प्लॉयर शैल डिस्प्ले अ नोटिस एट द नियर at or near the main entrance of the establishment in bold letters in English and in language understood by the majority of the employees, specifying the name of the officer with designation authorized by the employer to receive on his behalf notice under this act and rules made thereunder। Our fourth provision है student, display of abstract of the act and rules। Display of the abstract of act and rules। The employer shall also display an abstract of the payment of gratuity act, display abstract of payment of gratuity act,
and rules made thereunder in English and other language understood by the majority. And rules in common language majority of the employees at the important place at near the main entrance of the establishment on form U. ठीक है, तो ये सारे क्या थे, सब मिसलेनियस प्रोविजंस थे ग्रेजुटी एक्ट के। पहला क्या था, पावर टू मेक रूल्स, अगर कोई रूल बनाना है, ठीक है, तो किसके पास पावर है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक एनी रूल्स रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, फर्स्ट वन प्रोविजन। सेकंड वन, नोटिस ऑफ ओपनिंग, चेंज और क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अगर एम्प्लॉय क्लोज करना चाहता है, चेंज करना चाहता है कुछ भी चीज़ें, तो उसके लिए उसको जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको नोटिस, उसको कम्युनिकेट करना होगा। एक टाइम पीरियड डिसाइड है, इसके अंदर आप उसको ये नोटिस अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को देना होगा और उसके बिहाफ पे वो क्या कर सकता है, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकता है। अ नोटिस शैल बी सबमिट बाय द एम्प्लॉयर टू अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी द एरिया विद 30 days ऑफ द एनी नेम चेंज एंड्रेस, कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हो अपनी एस्टेब्लिशमेंट में। डिस्प्ले ऑफ नोटिस, नोटिस की जो भी डिस्प्ले है, जो भी नोटिस है वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप अपने कस्टमर को अपने वर्कर्स को देना चाहते हो, द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एट दैट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड एट द मेन एंट्रेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इन कॉमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, और लास्ट है डिस्प्ले ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। तो डिस्प्ले ऑफ एक्सट्रैक्ट में हम बात कर रहे हैं कि भाई जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट का जो एब्स्ट्रैक्ट है दैट मस्ट बी डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड एट द मेन एंट्रेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आना जाना है, यानी कि मेन एंट्रेंस ही होता है, और कॉमन लैंग्वेज में होनी चाहिए, बोल्ड लेटर्स में होनी चाहिए, और जो मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं उस लैंग्वेज में उसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस थे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अब सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। किसी भी टॉपिक में, ग्रेजुटी एक्ट के किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।